All right. So our very first chapter is obviously about the total utility. I've gone over a lot of people's questions. One of the problems that I have is you're not explaining the basic terms. You're directly jumping into explanation of the theory. Please, every single word in a question needs to be explained. Like अगर total utility या marginal utility का term use हो जाता है, yeah, even if they simply talk about कि बताएं जी how the MU theory can help us derive the demand curve or something along that line. ये अभी recent का आया हुआ है question. So you have to start from the really basic, like go to the start of the very first paragraph जो हम लिखते हैं normal हमारे books के अंदर, that consumers जो है वो goods and services consume करते हैं तो to derive happiness, and that happiness is called utility. Do you understand? We go from the really top, and consumers are trying to maximize their happiness, right, in the given budget. So they have to allocate resources in a way which gives them the highest utility. ठीक है। फिर आपने लीड किया कि कंज्यूमर जो है, वैसे तो थोड़ी बहुत अजम्पशन ना जो हम थ्योरी में लेके चलते हैं कि कंज्यूमर जो है बड़े रैशनल होते हैं, दे ऑलवेज वांट मोर ओवर लेस, दे हैव लिमिटेड फंड्स। तो इस तरह दे रैशनल, दे वोंट डू इम्पल्सिव बाइंग। तो थोड़ी सी अजम्पशंस आप देंगे, यू गोना सेट अप द स्टेज, राइट। आई थिंक यू मस्ट हैव लॉस्ट दिस। Right. So if I have to compare this stuff, let me go over here and use the Bamford and its discussion कि बेसिकली यूटिलिटी क्या होती है, कंज्यूमर क्या करने की कोशिश कर रहा होता है, फिर आपने टर्म्स को डिफाइन करना है, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी. इट इज अ मस्ट टू टॉक अबाउट दिस. You can give an example. Examiners love examples. All right. Example देने का मतलब हो गया कि आपने almost अपने आंसर को close to a level up कर दिया just by giving examples of the things. All right. टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का वो जो डायग्राम हम बनाते हैं जिसमें टोटल यूटिलिटी गोज लाइक दिस एंड मार्जिनल गोज लाइक this is not a mandatory diagram. I would say this diagram is only useful when you're sort of like trying to go for the construction of the demand curve, right? That's where it might be relevant. लेकिन जब क्वेश्चन डिमांड कर्व के ऊपर आ जाता है ना, you do your basic definition, you want to do the diagram, do it, please make sure that it's perfectly accurate. इसके कोई खास मार्क नहीं है. जब हमारा डिस्कशन डिमांड कर्व की कंस्ट्रक्शन है एंड हाउ एमयू थ्योरी और दिस कैन डू दैट, then the real question is about the equimarginal principle. We want discussion on the equimarginal principle उस चैप्टर के हिसाब से. Now when you're going for equimarginal principle, I think हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर ही लिया होगा कि there are some set of assumptions that we make. Okay. Then you're going to explain me what does this mean? MUA divided by price of A. That means every dollar में आपको कितना happiness मिल रहा है. Then you're going to explain me how you can use it to make comparison between the X number of goods, right? That's what equi-marginal principle means. Equi means that wherever MUA divided by price of A is equals to MUB divided by price of B, तो ये इक्वल हो गया, एंड दैट क्वांटिटी विल बी योर इक्विलिब्रियम. ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू बी मेंशन्ड एट दिस पॉइंट, राइट. फिर उसके बाद इट्स derivation of the demand curve using the equimarginal principle. I feel that they haven't done a good justice over here. तो हमारे जो नोट्स के अंदर और जहां पे हम बात करते हैं ना कि that how if MUA divided by price of A is equals to MUB divided by price of B, and you might be at an equilibrium over here, point A.
और फिर अगर ए की प्राइस आप कम कर देते हैं, तो व्हाट वी रियलाइज इज देयर इज अ डिसइक्विलिब्रियम दैट टेक्स प्लेस. MUA divided by price of A gives you higher utility. So you're saying since the price of good A has fallen down, consumers should consume more of good A and less of good B. That shows that good A की consumption में जो है वो increase आना चाहिए. So if there's a fall in the price, that helps us derive the demand curve. I think ये आपका एक बेहतर होगा. वेयर एज अगर यही इंफॉर्मेशन मैं टेरी कुक के अंदर देखूं तो सिंपल से वर्ड्स एग्जांपल्स दिए हुए हैं, टर्म्स की डेफिनेशंस दी हुई हैं, डायग्राम शो किया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इक्वी मार्जिनल के ऊपर बात की है, डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व को काफी बल्कि इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल को एक्सप्लेनेशन दिया है उसने, उसको काफी बेहतर आई फील के टेरी कुक हैज डन मच बेटर जस्टिस टू इट. And plus, you remember, right? This is not AS examination. This is A2. तो A2 के अंदर इवैल्यूएशन के अंदर तुम्हारा ये सारा लिमिटेशन जाएगा, थ्योरी का काउंटर, दैट हाउ मच कैन यू रिलाई ऑन दिस थ्योरी और नॉट. तो वो ऑब्वियसली जो आपने अजम्पशंस दी हैं उसका काउंटर जो है वो आप यहाँ से उठाएंगे लिमिटेशन से. 6 marks हैं तो we're looking at least 1 page worth of evaluation, if not like 80% of the page, if not 75% of the page तक तो आपका evaluation होना चाहिए. uh, the quality matters, okay, but at the same time expansion matters. You don't want to give examiner anything कि यार you know what ये अच्छा well developed है कि नहीं है or something along that line. ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर. तो पहले चैप्टर MU का जो डिमांड कर्व की कंस्ट्रक्शन है उसकी बेसिक वर्ड्स की थ्योरी, how the assumption, how the theory works, how the demand curve is constructed, and how are the limitations of it. ये आपका पहला चैप्टर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है. पूरा क्वेश्चन अगर इसका आ जाता है बहुत अच्छी बात है. द इंटायर 20 मार्कर यू हैव टू डू ऑल ऑफ दैट, मैक्सिमम टाइम लोगे. आई थिंक यू हैव 40 minutes फॉर एवरी क्वेश्चन मैक्सिमम. चलो अगर तुम थोड़ा सा आगे पीछे भी कर लो 35 minutes, तो दिस इज ऑल दैट्स रिक्वायर्ड. अगर इसका ब्लेंडेड क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि नॉर्मली हमने क्या देखा है कि MU के ऊपर आया एक वेरिएंट के अंदर मार्च के, उससे पहले जो है अक्टूबर 43 के अंदर जो है इंडिफरेंस कर्व के ऊपर प्राइस राइज के साथ आ गया. तो मे बी लाइक अ ब्लेंड ऑफ द टू एंड हाउ बोथ ऑफ देम कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट अ डिमांड कर्व. ये पहले पास में आ चुका है 12-13 मार्क्स के जब क्वेश्चंस आते थे. सो मे बी लाइक अ ब्लेंड ऑफ द टू. So obviously you're going to then talk about both the things. मेरी नजर के अंदर जो आपका सेकंड पार्ट आ जाता है जिसके अंदर आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात करते हैं, उसमें भी कुछ ज्यादा है नहीं पर बहुत सारे डायग्राम हैं. होता क्या है, आई टॉक अबाउट टू थिंग्स ओवर हियर. पहली बात, आई होप यू कैन एक्सप्लेन द इंडिफरेंस कर्व एंड यू कैन एक्सप्लेन द बजट लाइन. अगर आप ये दोनों चीजें नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए है ही नहीं. And that's just sad कि तुमको अभी तक ये नहीं आता, because this was one of the first chapters that we did in extensively. You've been tested over and over again. You should be able to do this in your sleep, honestly, right now. अब इसके ऊपर जब क्वेश्चन आता है यूजुअली कि इंडिफरेंस कर्व मल्टीपल साइड्स पे आ सकता है. इंडिफरेंस कर्व डिमांड कर्व की कंस्ट्रक्शन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, राइट? कौन से डिफरेंट टाइप्स? नॉर्मल, इंफीरियर, गिफन. आपको पता है जब आप नॉर्मल का बनाते हैं तो इलास्टिक बनता है, इंफीरियर का बनाते हैं तो इन इलास्टिक बनता है, और गिफन का बनाते हैं तो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है. वी शुड बी perfect with it. But not only that, you lose marks if you don't explain income and substitution effect. You must talk about that. And I hope you know that income and substitution effect only happens when there is a change in the price. अगर मैं तुमको ये क्वेश्चन दे दूं
कि प्राइस ऑफ अ गुड इज नॉट चेंजिंग बट रादर द इनकम इज राइजिंग। एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब बताओ इंडिफरेंस कर्व एक ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एक ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर किस तरह से टाइप्स ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। इसमें प्राइस चेंज की बात तो नहीं हुई ना। अगर प्राइस चेंज की बात नहीं हुई तो दिस ऑल ऑफ थिंग इज गॉन, बिकॉज ये तो प्राइस इफेक्ट है। मैं तो इनकम के साथ तुमको दे दिया, यहां पे कहीं पे भी नहीं मेंशन्ड है वो। लेकिन दिस इज व्हाट यू डू विद दिस देन। You start your question indifference curve shows various combinations of two goods that gives you the same utility. थोड़ा सा उसको और expand करें. The higher the indifference curve, the higher the total utility. The lower the indifference curve, the lower the total utility. A rational consumer will always prefer a higher indifference curve compared to the lower indifference curve, right? Because of the assumption that a consumer would always be willing to buy more rather than less of something, right? फिर बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन शोज द maximum combination of two goods that can be purchased with the given income and the prices, given prices of the goods. ठीक है। अब अगर इनकम बढ़ती है तो मैंने पहली चीज क्या शो करनी है कि जब इनकम बढ़ती है तो गुड एक्स और गुड वाई के अंदर इनकम बढ़ने की वजह से आपका बजट लाइन आउटपुट शिफ्ट कर जाता है। अग्रीड? उससे पहले जो आपने कर्व बनाया एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से इंडिफरेंस कर्व्स बनाए थे when you made the first discussion. उसके बाद आपने मुझे एक इक्विलिब्रियम बना के दिखा दिया, या वो एक ही डायग्राम के अंदर आपने इक्विलिब्रियम करके perfectly labeled. I'm just making a very rough one, but I want a perfectly labeled diagram. No axis should be missed. इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ x और y मत लिखना. You must make sure that you write good x, good y, stuff like that. अब बात यह है कि नॉर्मल और इंफीरियर किस तरह से दिखेगा अगर दो गुड्स, अगर इनकम बढ़ती हैं। ये आपका इक्विलिब्रियम है। अगर इनकम बढ़ती है, अगर दोनों गुड्स नॉर्मल हैं, तो यू विल एंड अप ऑन द हायर इंडिफरेंस कर्व। अंडरस्टूड? क्योंकि इनकम बढ़ने से दोनों की डिमांड बढ़ गई, तो ये तो नॉर्मल में होता है। लेकिन अगर यू मूव ऑन एन इंडिफरेंस कर्व विच इज ओवर हियर, ये क्या बता रहा है कि गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ गई है लेकिन गुड वाई की गिर गई है। तो दिस शोज दैट X is a normal good and Y is an inferior good, क्योंकि उसकी कंजम्पशन में ड्रॉप आया है। यहां पे कोई सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट का कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। ये सिंपली इनकम के चेंजेस की वजह से दिस इज हाउ इज गोना हैपन। इनफैक्ट दिस माइट बी इवन रेलेवेंट इफ दे से, hear me out, indirect taxes have been reduced. Indirect taxes has been reduced. अब इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सारे गुड्स पे लगता है, किसी एक पे तो नहीं लगता ना। जब हम अपने नॉर्मल इंफीरियर गिफिन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जब एक गुड की प्राइस में चेंज आता है जिसकी वजह से आपके कर्व में पिवट शिफ्टिंग आती है। अगर मैं कह रहा हूं सेल्स टैक्स हैज बीन रिड्यूस्ड, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सारे गुड्स की प्राइसेस कम हो गई है। So that will actually cause this to happen. Your nominal income line is going to pivot, shift to the right, and then normal or inferior ka discussion will come in. Giffen is slightly hard to talk about. तो ये मैंने एक तुमको एक एड ऑन चीज बता दी है कि इनकम का शिफ्ट मांग ले तो क्या है। अदरवाइज तो वो जो इसमें भी अगेन टेरी कुक की बुक का मैं सहारा लूंगा। टेरी कुक हैज एक्सप्लेन्ड incredibly all the things like the substitution and the income effect. ये income effect वाला जो अभी मैं करा रहा था ना, the idea that I just spoke of, ये income effect के अंदर टेरी कुक की बुक के अंदर basically this is where it is, page 159 के अंदर if income का change आएगा तो किस तरीके से parallel shifting आएगी and your curves gonna shift to the right and the left and you're gonna end up on
डिफरेंट वो, तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट का कोई रोल प्ले नहीं है। लेसन इन क्वेश्चन दे नॉट गोइंग टू ऑलवेज मेंशन सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट को एक्सप्लेन करना लाजिम है। इट्स एन अंडरस्टूड डील दैट यू हैव टू डू इवन इफ द क्वेश्चन इज अबाउट डेरिवेशन ऑफ द डिमांड कर्व। इंडिफरेंस कर्व को लेके यू हैव टू टॉक अबाउट द सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। तीन चीजें होती हैं उसके अंदर। हमने भी जो अपने नोट्स के अंदर पढ़ा हुआ है, इसने प्राइस इफेक्ट लिखा है। यूजली मैंने तुम लोग को टोटल इफेक्ट के साथ उसको बात को पढ़ाया है कि जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस गिरती है, यू नो, और प्राइस गिरने से जब हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो वो जो पहला मूवमेंट होता है उसको, जिसको हम टोटल इफेक्ट कहते थे, वो आपका प्राइस इफेक्ट भी होता है। इट्स द सेम थिंग, नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। परफेक्ट योरसेल्फ इन दिस एंड इट्स इन इट्स डायग्राम, जो आपका नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन इनकम प्राइस राइज के ऊपर अभी अक्टूबर के वेरिएंट में आ गया है। आई थिंक they'll stick with the basics with you guys, एंड प्राइस अगर आया भी तो प्राइस फॉल के ऊपर ही आएगा। पर अगेन यू कांट रूल आउट एनीथिंग, honestly I can't say कि नहीं हो सकता। but the whole deal about whether it's a price fall or price rise, substitution effect, income effect, price effect या total effect, एंड नॉर्मल इंफीरियर, और इन सब का एनालिसिस तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एंड देन अगेन देयर इज अ होल लिमिटेशन टू दिस होल ordeal के इंडिफरेंस का मॉडल में क्या इश्यूज हैं, लाइक लिमिटेशन टू जस्ट two diagrams, and it only talks about the preference and deals with the idea that utility cannot be measured. इसमें भी हम अस्यूम करते हैं कंज्यूमर जो है विल ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ समथिंग देन लेस ऑफ समथिंग। तो ये थोड़ी बहुत हमारे पास इंडिफरेंस कर्व के अंदर इश्यूज हैं। एमयू वर्सेस इंडिफरेंस कर्व के अंदर इंडिफरेंस कर्व इज मोर एक्सटेंसिव बिकॉज एमयू डज नॉट टॉक अबाउट इलास्टिसिटीज, नॉर्मल इंफीरियर गिफिन उनके अंदर कोई खास डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करता है, और अस्यूम करता है कि यूटिलिटी मेजर हो सकती है, विच इज थोड़ा सा लेस रियलिस्टिक। ऑल दो दोनों बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और दोनों में इश्यूज तो अपनी जगह है। जहां तक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात आ जाती है, ऑनेस्टली वी हैवंट सीन मच ऑन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, पर थोड़ा सा एक डिस्कशन हमारा आता है वो नज थ्योरी की तरफ, और काफी सारा कॉन्सेप्ट इन्होंने इसके ऊपर डील किया हुआ है। नॉट अ गुड आइडिया टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन वेयर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की कोई बहुत लार्ज स्केल डिस्कशन करनी पड़े। आई थिंक बैम्फर्ड अगेन हैज नॉट done justice to it. Uh, Hardly there is anything on it. एक सेकंड, अगर बैम्फर्ड के उसके अंदर कहीं पे आता है तो देन आई विल गो ओवर इट। गिव मी अ लिटिल टाइम फॉर दैट। अब जहां तक हमारा दूसरा आइडिया है, क्या एक्सटर्नैलिटीज के ऊपर आ सकता है कि नहीं। लेट मी डील विद अ क्वेश्चन और टू, वन सेकंड। In the income change diagrams, normal goods and inferior will be in the same direction like pivot. I don't understand. Uh, भाई डायग्राम्स में तो फर्क है ना। when we see the diagrams, there's a major difference. जब आप इनकम वाला करते हो तो देर आर पैरेलल शिफ्ट टेकिंग प्लेस लाइक दिस वन, बिकॉज इनकम के चेंज होने से आप आउटवर्ड जाते हो, इनकम राइज होने से, नॉमिनल इनकम राइज होने से, और पीछे की तरफ जाते हो उसकी वजह से। तो इसका डायग्राम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यू जस्ट जंप अप एंड डाउन टू हायर और लोअर, राइट। इसके अंदर नॉर्मल और इंफीरियर का फर्क ये आता है, जस्ट इमेजिन इफ यू वर हियर और आप यहाँ आ गए, इंस्टेड ये वाला इंडिफरेंस कर्व अगर इधर होता तो फिर एक गुड के अंदर ड्रॉप आना और एक के अंदर राइज आना। इनकम तो बढ़ रही है, इनकम बढ़ने से जिस
प्रोडक्ट की कंजम्पशन बढ़ेगी वो नॉर्मल हो जाएगा, अगर दूसरे गुड की भी कंजम्पशन बढ़ रही है तो नॉर्मल हो जाएगा। किसी एक को इंफीरियर करने के लिए तुमको थोड़ा सा राइट ज्यादा इस तरफ लेके जाना पड़ेगा ताकि एक दूसरे वाले गुड की कंजम्पशन में ड्रॉप आए, तभी इंफीरियर बन सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ऑलराइट, लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। कैन यू डिस्कस बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इन ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर? ऑफ कोर्स यू कैन, definitely, because this question के अंदर you're assuming that the consumers are rational, right? And they're just going to be logically making these decisions. पर हमने देख लिया कि बिहेवियर इकोनॉमिक्स ने पूरा इस आइडिया को डिबंक कर दिया कि क्योंकि तुमने कहा कि assumption of this theory is that people are rational, they're not going to do impulse buying or peer pressure and all of that, and that's all something that can be influenced through nudge theories and peer pressures and all. So behavioral एक तरीके से definitely you can say कि is part of an evaluation, right? It's not completely all evaluation, but part of evaluation. ठीक है, और उसके अंदर भी हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग के अंदर तो नहीं जाएंगे। ठीक, और राइट, मूविंग ऑन। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा क्या एफिशिएंसी का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी का चैप्टर हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हाट वी सीन इन द पास्ट ऑलमोस्ट ऑल एग्जामिनेशन इज कि वो बहुत ही प्यार से किसी भी टॉपिक के साथ एक छोटा सा वर्ड एफिशिएंसी डाल देते हैं बीच के अंदर, एंड अफेक्ट्स द एफिशिएंसी, something like that. But what that single word does is that it just brings in the whole chapter. जब एफिशिएंसी की बात होती है तो इट इज मैंडेटरी, आई वुड से, बेशक उसमें लिखा हुआ हो कि हाउ दिस वुड हैव एन अफेक्ट ऑन द रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंसी, राइट? अब जब बात होती है रिसोर्स एलोकेटिव एफिशिएंसी की बात हो गई वो तो P इक्वल्स टू एम सी की बात हो गई वो तो। बट द थिंग इज कि मैं इंट्रो के अंदर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को भी जरूर एक्सप्लेन करूंगा। इफ दे यूज द वर्ड इकोनॉमिक एफिशिएंसी तो फिर तो आप पे फर्ज है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी को डिस्कस कर, फर्ज। ठीक हो गया। और उसकी ऑब्वियसली जो आप कंडीशंस की बात करते हैं कि उनकी क्या कंडीशंस हैं, बहुत ज्यादा different books have different explanations of this. I think Bamford has very kept it nicely and simply कि भाई productive efficiency is simply where you can achieve average cost का minimum, ठीक है, और allocative efficiency where P is equals to MC, right? या फिर आपका MR equals to MC के अंदर P equals to MC। अब तुमने उस मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से जैसे भी इस बात को लेके जाना है। फिर इकोनॉमिक एफिशिएंसी का वर्ड यूज होगा तो परेटो ऑप्टिमैलिटी को डिस्कस करना तुम पे लाजिम हो जाता है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी लिखा है तो परेटो एफिशिएंसी डालो। अगर किसी मार्केट स्ट्रक्चर के साथ उन्होंने एफिशिएंसी का वर्ड डाला है तो प्रोडक्टिव एलोकेटिव की बात करो, परेटो की डिस्कशन जरूरी नहीं। परेटो का कॉन्सेप्ट है क्या? परेटो का सिंपल कॉन्सेप्ट है, और सिर्फ तुमने वर्ड्स के अंदर ही इस बात को मेंशन कर देना है कि भाई जब हम कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं, परेटो ऑप्टिमैलिटी इज सिंपली द पॉइंट where resources are used to such an amazing degree or such an efficient level that in order to make somebody better off, you have to make somebody worse off. अगर हम डिसाइड करते हैं पीपीसी पे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाते हैं तो ये फर्म्स को बेनिफिट कर रहे हैं और कंज्यूमर्स को सफर करा रहे हैं, सिंपल सी बात है। That means if you're on the PPC, you're at Pareto optimality. That in order to make somebody better off, somebody else needs to be worse off. A point inside the PPC shows Pareto in optimality. What does that mean? That you can improve somebody's welfare without at least compromising others. तो ये तुम्हारे लिए हो जाता है परेटो इन ऑप्टिमैलिटी की बात। ये सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब क्वेश्चन इज हेविली
relying on economic efficiency. But when I say this, ज्यादातर हमने नोटिस ये किया है, डायनामिक एफिशिएंसी का डिस्कशन इवैल्यूएशन में आता है, थोड़ा सा लॉन्ग रन डिस्कशन के साथ आता है, और एंड व्हाट इट डज इज इट शिफ्ट योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डाउन। जरा से जरूर देखें कि डायनामिक एफिशिएंसी क्या होती है। डायनामिक एफिशिएंसी हम वैसे तो इट्स काइंड ऑफ अ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। देखो ना, नोटिस करो मैंने कौन सा कर्व को शिफ्ट किया, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वाले कर्व को शिफ्ट किया। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग रन में गेन्स देता है। ठीक है, तो दिस वुड बी वन ऑफ द गुड थिंग्स। Question is, can this solve the market failure? Uh, which market failure are we talking about over here? थोड़ा सा मुझे clarity दो, so then I'll talk about it. Uh, फिर नीचे efficiency के अंदर there is a more discussion about understand that sometimes market fails to deliver the most efficient allocation. ये देख रहे हो, ये जो हमने बनाया है imperfect market का, ये markets की ही बात हो रही है, and sometimes we're saying that the markets fail to do so. Of course they fail to do so. जैसे monopolies जो हैं वो हायर प्राइस चार्ज करते हैं, कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, और एक डेड वेट लॉस क्रिएट कर देते हैं ओवर हियर, राइट? तो ये डेड वेट लॉस एक तरीके का मार्केट का ही तो इशू है, दैट द मार्केट इज फेलिंग। तो आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? तो अगर तुम उसको एस्पेक्ट से कह रहे हो तो पर ठीक हो गया, डन है, जबरदस्त है, राइट? So let me take you to what Terry Cook is talking about in this one. तो जल्दी से वॉक थ्रू करते हैं इसके ऊपर। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ये वाली डेफिनेशन रट लो। एफिशिएंसी को आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? व्हेन द स्कैर्स रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द बेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव पॉसिबल वे टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबल। ठीक है, फिर आपने प्रोडक्टिव को एक्सप्लेन कर दिया कि जब आप लीस्ट रिसोर्सेज यूज करके जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, यू गेट द हाईएस्ट आउटपुट। एलोकेटिव एफिशिएंसी इज वेयर पी इज इक्वल टू एम सी। जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उतना कंज्यूम हो रहा है, देयर इज नो शॉर्टेज, देयर इज नो वेस्टेजेस, देयर इज नो डेड वेट लॉस, नन ऑफ दैट। we've talked about this, we've talked about this. Pareto optimality, dynamic efficiency, we've pretty much talked about it. मार्केट फेलियर के साथ एफिशिएंसी का क्वेश्चन बहुत पास्ट के अंदर आता रहा है, बहुत दफा आ चुका है। यू नो द मार्केट फेलियर्स, ये वही एएस वाले मार्केट फेलियर्स। Markets do not provide public goods, over provides demerit goods, under produces merit goods, externality in production like pollution वगैरह करते हैं, right? So all of that is part of this. इसमें बड़ी अच्छी सी और बहुत सारी लिखी हुई है। इसने तो एक्सटेंसिव डिटेलिंग के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है। uh, मेरी नजर के अंदर going through all of that is not so important. You deal with these ones. ये तुम्हारा नॉर्मल मार्केट फेलियर की बात हो रही है। दिस वन इज मार्केट स्ट्रक्चर्स रिलेटेड। ठीक है, दिस वन इज अबाउट इनइक्वालिटी के रिलेटेड। और बाय द वे लेट्स नॉट फॉरगेट, बट लेबर मार्केट के अंदर भी जब डिमांड और सप्लाई कर्व फेल हो जाती हैं, लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई, जिस तरह से मोनोप्सनी का केस है, ट्रेड यूनियन का केस है, ये सब एक तरीके का मार्केट फेलियर है, राइट? तो अगेन बहुत ज्यादा उसकी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नैलिटीज के ऊपर ऑनेस्टली, एक्सटर्नैलिटीज और लेबर के ऊपर यूट्यूब के ऊपर मैंने लास्ट ईयर की, आई थिंक आई डन अ वेरी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। एक दो घंटे की वीडियोस हैं एक्सटर्नैलिटीज के ऊपर और लेबर मार्केट के ऊपर। यही बुक को यूज करते हुए आई हैव गॉन ओवर लाइक द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। आई थिंक इट्स वेरी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक। मेक श्योर, स्पेशली क्योंकि लेबर, we're assuming कि लेबर is one of a very important topic this year, uh, right? एक्सटर्नैलिटीज बहुत आ गया है।
लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है कि ये दिए जा रहे हैं जून के अंदर। आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव। maybe they're just trying to perfect kids with this one. Doesn't make sense. किस तरह से मार्केट फेलियर देखे, अगर, चलो, let's have a talk about this one also. Idea is very simple. अगर मार्केट फेलियर का क्वेश्चन आता है, मार्केट फेलियर का क्वेश्चन के अंदर आपको जो अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर आनी है वो ये है कि आर वी टॉकिंग अबाउट द सेम मेरिट डीमेरिट एंड ऑल ऑफ दैट टाइप्स ऑफ गुड्स वाला टाइप का क्वेश्चन है, या किसी किस्म का मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, आई थिंक बहुत क्वेश्चन के अंदर साफ क्लैरिटी होगी। हमने क्लास के अंदर भी ये बात की थी। वंस यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि आपने मार्केट स्ट्रक्चर के चैप्टर के थ्रू एफिशिएंसीज एलोकेटिव और इनको एक्सप्लेन करके करना है, या आपने डायरेक्शन जाना है मेरिट डीमेरिट के केस में। आपको पता है कि इस चैप्टर के अंदर अगर आप मेरिट डीमेरिट के पर्सपेक्टिव से जाते हैं तो द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नैलिटीज, राइट? द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नैलिटी। अब एक्सटर्नैलिटीज में अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आ जाओ कि एक्सटर्नैलिटीज के अंदर होता क्या है। एक्सटर्नैलिटीज को पहले तो एक्सप्लेन करो, कौन कौन से वर्ड मुझे नजर आने चाहिए। स्पिल ओवर, इफेक्ट अनरिलेटेड पार्टी, द थर्ड पार्टी, ओके, लाइक ट्रू कॉस्ट और ट्रू बेनिफिट के परस्पेक्टिव से। जब हम एक्सटर्नैलिटी की बात करते हैं तो एक्सटर्नैलिटी कैन अकर फ्रॉम द कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू, एंड एक्सटर्नैलिटी कैन हैपन फ्रॉम द प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन में असेस करो कि ये प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पोल्यूशन टाइप की बात हो रही है या कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ इट्स ओपन एंडेड देन यू डू बोथ। फिर याद रखो कि एक्सटर्नैलिटीज कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर है तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सेम गोज विद प्रोडक्शन, राइट? ये कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन के पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब भी कोई पॉजिटिव होता है आप उसको बेनिफिट कहते हैं, और जब भी नेगेटिव होता है आप उसको एक्सटर्नल कॉस्ट कहते हैं। फर्क क्या होता है सिर्फ इसको डिफाइनिंग, एक्सटर्नल बेनिफिट इन कंजम्पशन, एक्सटर्नल कॉस्ट इन कंजम्पशन, या एक्सटर्नल प्रोडक्शन बेनिफिट, या एक्सटर्नल बेनिफिट इन प्रोडक्शन, या एक्सटर्नल कॉस्ट इन प्रोडक्शन। इससे फिर आपके क्वेश्चंस के अंदर एक क्लैरिटी आ जाती है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क। इसके कुछ 6 डायग्राम्स हैं which you should excel in. Let me try and explain using the Bamford, Terry Cook, because उसने अच्छे डायग्राम बैम्फर्ड ने भी बनाए, पर बैम्फर्ड थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके चला जाता है चीजों को। सिंप्लीफाई, आई थिंक दिस वन इज सिंप्लीफाइड। ये वाला जो मैं डायग्राम देखता हूं इसमें सप्लाई कर्व को शिफ्ट किया हुआ है इन्होंने, तो दैट मीन इससे मुझे हिंट मिल गई कि ये समथिंग इट हैज टू डू विद प्रोडक्शन, क्योंकि सप्लाई कर्व में हुआ है। सोशल कॉस्ट ज्यादा है प्राइवेट कॉस्ट से, यानी एक बनाने की जो कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर आपने सोसाइटी का भी कॉस्ट ऐड किया, यानी एक एक्सटर्नल कॉस्ट, एक सोसाइटी पे नेगेटिव थर्ड पार्टी की इफेक्ट। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज इन प्रोडक्शन की बात हो रही है।
सोशल बेनिफिट और प्राइवेट बेनिफिट सेम है विद द अजम्पशन ये ना मेरिट गुड है ना डीमेरिट गुड है। मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि कंजम्पशन के अंदर कोई शिफ्टिंग नहीं आई है। इसमें सोशल बेनिफिट और प्राइवेट बेनिफिट में कोई डिफरेंसेस नहीं है। आई होप यू नो दिस, राइट? अब इन्होंने क्या लेबल किया है? ओ माय, और एक सेकंड देखो क्लोज। बात क्या हो रही है? प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट, दिस इज Q1 वेयर मार्केट प्रोड्यूसेस Q1 के ऊपर। ठीक है। सोशल कॉस्ट, सोशल बेनिफिट, दिस इज वेयर इट शुड एक्चुअली बी प्रोड्यूस। तो मार्केट फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? मार्केट ने ओवर प्रोडक्शन की हुई है। इसको ठीक करने की जरूरत है। ये जो इन्होंने ग्रे एरिया शेड किया है, मेरे ख्याल में ये ग्रे एरिया जो है ये मार्केट फेलियर नहीं है। मार्केट फेलियर तो इधर होना चाहिए था। दिस शुड हैव बीन द मार्केट फेलियर। बिकॉज मार्केट जहां प्रोड्यूस कर रही है, हम वहां पे सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट को देखते हैं एंड क्वांटिटी को कम करेंगे। तो ये ग्रे एरिया इन्होंने असल में बनाया क्या है? बिकॉज इफ दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, देन आई हैव सीरियस प्रॉब्लम विद दिस वन। हैव दे मेंशन्ड इट? 7.16। Yeah, that's not the market failure. I am 100% sure that that's not the market failure. Um, is it a dead weight loss that may occur? Sure, it is a dead weight loss that is occurring for sure. I would say compared to the market, अगर आप quantity कम produce करें, but market failure को आप ऐसे नहीं represent करते हो. That is a wrong interpretation of that. Let me see what Bamford is doing. Definitely Bamford not gonna be doing that, or at least should not be doing that. That's the Bamford completely उसको ignore ही मार दे. Okay, so Bamford is, या Bamford ने जो बनाया है ये देख लो. Bamford has slightly different, obviously अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो. ओके, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू इग्नोर. इग्नोर दिस लाइन. ओके, लेट्स अस्यूम ये आपकी प्राइवेट कॉस्ट है, जस्ट लाइक व्हाट वी डिड प्रीवियस में. प्राइवेट बेनिफिट, सोशल बेनिफिट, दिस इज वेयर द मार्केट प्रोड्यूसेस Q1. ठीक है. सोशल कॉस्ट, उसमें हमने एक्सटर्नल कॉस्ट को ऐड किया, ये लाइन ऊपर की तरफ चली गई. ठीक है. देख लो यहाँ पे उसने मार्केट फेलियर दिखाया है. टेरिको वाज शोइंग इट ओवर हियर, विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग. यहाँ पे होना चाहिए. दिस इज द करेक्ट वन. सही है. दिस वन वुड बी मेड व्हेन यू आर सेइंग कि सोल्यूशन क्या है, कितना टैक्स लगना चाहिए, तो फिर आप बोलते हो इतना टैक्स लगना चाहिए. तो मेरी नजर के अंदर दिस इज फाइन, दिस इज बेटर. यू इग्नोर दैट वन. ठीक है. मूविंग ऑन आफ्टर दिस, ये आपका डायग्राम हो गया. तो अगेन मेक श्योर. अब ये वाला जो डायग्राम है, इसके अंदर मुझे क्या नजर आ रहा है? ओके, डिमांड कर्व हैज शिफ्टेड, तो दैट मींस ये कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है. प्राइवेट बेनिफिट कम है, सोशल बेनिफिट ज्यादा है. तो ये किस टाइप का गुड हुआ? सोशल बेनिफिट इज मोर. डेफिनेटली दिस इज अ डिस्कशन ऑन अ मेरिट गुड. इसके अंदर भी एक्सटर्नैलिटीज बाय द वे गलत मार्क हुआ है. ये होना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा मार्केट के ऊपर देखोगे कि फेलियर कितना है, तो फिर ये आपका फेलियर बता रहा है. अगर वो पूछते कि करेक्शन बताओ कि करेक्शन क्या है, तो फिर मैं बताता कि ये करेक्शन की जरूरत है. इतनी सब्सिडी अगर मिल जाए
तो ये सप्लाई कर्व जो है वो राइट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी करेक्शन आ जाएगी। तो ग्रे एरिया एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि सोल्यूशन क्या है, एंड द रेड एरिया शोज के मार्केट फेलियर क्या है। ठीक है। इट इज द सरप्लस ऑफ क्वांटिटी दैट कॉजेज मार्केट फेलियर। आई डोंट नो व्हाट दैट। ठीक है जी। सो ये मार्केट फेलियर, देयर इज अ लेंदी डिस्कशन ऑफ एटलीस्ट 1 आवर जो मैंने पूरे इस टॉपिक के ऊपर किया हुआ है, विद ऑल द डायग्राम्स, ऑल द एक्सप्लेनेशन, वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यू कैन प्लीज टेक अ लुक एट दैट। सो आई डोंट नो, दे ट्राइंग टू डू समथिंग विद दिस। कुछ भी हो सकता है उसके हिसाब से। ठीक है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्या प्रोडक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है? अभी रिसेंट के अंदर एमईएस आ गया था मार्केट स्ट्रक्चर्स के साथ, कि हाउ डिफरेंट, कौन सा ईयर था, लेट मी टेल यू द ईयर। एमईएस के ऊपर जो क्वेश्चन आया था, या जून 42 लास्ट ईयर आ चुका है, तो ऑब्वियसली देयर लेस चांसेस ऑफ दैट। एमईएस और मार्केट स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन आया था, और उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या था कि एमईएस किस तरीके से कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई कि क्या मार्केट स्ट्रक्चर्स है। ठीक है। तो एमईएस को उन्होंने यूज किया था उसके लिए। तो एमईएस किस तरीके से यूज हो सकता है, एमईएस आपको पता होना चाहिए क्या है। आई थिंक वी डन विद दैट क्वेश्चन। अब तो नहीं आना चाहिए, बट फिर भी आपको एक अंदाजा होना चाहिए। um, इसके ऊपर कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है। इसके अंदर आपको जो ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आइडिया होना चाहिए। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, different types of economies of scale. Even if MES is discussed, you do talk about different economies of scale, right? फिर आपका जो स्ट्रक्चर पे आ जाता है क्वेश्चन, मार्केट स्ट्रक्चर्स के ऊपर। मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर तुम्हें नॉर्मल, सब नॉर्मल, या जो इकोनॉमिक लॉस, मैंने तुम्हें इकोनॉमिक लॉस पढ़ाया है। अगर तुम सब नॉर्मल के तौर पे जाना चाहते हो, एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। यू कैन वर्क विद बोथ, सुपर नॉर्मल या एब नॉर्मल, परफेक्टली फाइन, कोई मसला ही नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इट्स कंडीशन, हाउ इट वर्क, MR equals to MC, and your ability to prove the explanation of abnormal profit, that how it's more than your opportunity cost, implicit explicit के discussion के साथ, MR equals to MC। डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स की कभी भी सवाल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात आ जाए, गिव अस अ ब्रीफ, always give us a minor brief on each market structure। चारों को एक्सप्लेन करोगे ब्रीफली, नॉट टू मच डिटेल्स, टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक अ फ्यू पैराग्राफ्स ऑन ईच। मतलब के द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, द प्रोडक्ट टाइप, the ability to change prices, short run, long run, maybe a little bit on efficiency if need be, the shape of the demand curve, something along those lines you can talk about it। I think again market structures में you should be very good at it, कोई मसला तुमको नहीं होना चाहिए। ओलिगोपली को थोड़ा सा क्लोजली देख लेना प्लीज। ओलिगोपली के क्वेश्चंस के अंदर याद रखो तुम्हारे जो तीन चार चीजें हैं। ओलिगोपली के अंदर क्या तीन चार चीजें हैं? द कार्टेल मॉडल, द प्राइस लीडरशिप मॉडल, द किंग्स डिमांड कर्व मॉडल। कार्टेल और प्राइस लीडरशिप सॉर्ट ऑफ कोलिजन में आ जाते हैं, और किंग्स डिमांड कर्व जो है वो आपका compete में आ जाता है, along with the whole game theory and how the firms sort of like if they are competing, how the Nash equilibrium will be reached। यस, अक्टूबर के अंदर आ चुका है। डज दैट रिड्यूस द चांसेस? जून में बहुत जमाने से नहीं आया, राइट? तो फिर इसकी वजह से अगर चलो अक्टूबर में भी आ गया हो, अक्टूबर में आया कि मार्च में आया है? मार्च के अंदर आया है, अक्टूबर में नहीं आया। सो अगेन मार्च इज नॉट आर वेरिएंट। तो
तो आई वुड स्टिल डू इट, एंड ओलिगोपली को तो साइड में प्रेप करेंगे ही, बट मेक श्योर कि वो कंटेस्टेबल और डिस्क्रिमिनेशन को भी थोड़ा सा देख लेना। कंटेस्टेबिलिटी के ऊपर भी काफी बड़ी डिटेल और डिस्कशन आ सकती है। इस बार मेरा नहीं ख्याल क्वेश्चन को बहुत मुश्किल आएंगे। आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जामिनेशन। एएस के अंदर भी हमने बहुत ही कोई हाई लेवल पढ़ लिया था, एंड द क्वेश्चन वाज जस्ट सिली, इट वाज जस्ट स्टूपिड। इनफैक्ट वो तो स्टूपिड के मेरिट डीमेरिट उठा के फिर दोबारा उठा के उन्होंने दे दिया, मेरिट डीमेरिट एंड फ्री गुड एंड पब्लिक गुड। तो बेसिकली जून की रेपुटेशन ही आ गई है। तो when they do stuff like that, then it's sort of like ask the question के what if they do give you the same मार्केट स्ट्रक्चर। दो दफा रिपीट हो गया, एक्सटर्नैलिटीज 2 जून से रिपीट हो रहे हैं, तीसरी दफा फिर आ जाए, दैट वुड जस्ट बी अनकॉल्ड फॉर। मेरा ख्याल में तो कुछ तो चेंजेस लेकर आएंगे ये लोग। ऐसे नहीं हो सकता कि ये बिल्कुल ही वही चीज उठा के दे दें। द शट डाउन पॉइंट हैज बीन डिस्कस्ड अर्लियर, नॉट टुडे बट अर्लियर। तो मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जो मॉडल है, थोड़ा सा उसको ख्याल करना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाले को। अ, अच्छा, ये जो है ना एक्स एफिशिएंसी, प्लीज मेक श्योर यू गिव इट अ रीड वन टाइम, बिकॉज ये एक्स एफिशिएंसी का जो आपका डिस्कशन आ जाता है ना मार्केट स्ट्रक्चर्स के हिसाब से, द होल एलोकेटिव एंड प्रोडक्टिव एंड द होल एक्स इनएफिशिएंसी का सीन, तो थोड़ा सा ये डिस्कशन के अंदर और इवैल्यूएशन के अंदर वी सॉर्ट ऑफ सीन द डिस्कशन ऑन इट। अगर आप देखें लेफ्ट के ऊपर, एक्स इनएफिशिएंसी को डिफाइन किया है, द इनएफिशिएंसी दैट कैन अकर इन अ मोनोपोली व्हेन production is not at the lowest point on the average total cost. By the way, you know that, right? जब हमारे पास मोनोपोली का हम डायग्राम बनाते हैं विद एन एवरेज कॉस्ट, लेट्स सपोज अगर मैं एबनॉर्मल प्रॉफिट भी बनाता हूँ एंड माय कर्व सॉर्ट ऑफ लाइक गोज लाइक दिस, you see, average cost का minimization is over here, right? It's over here. लेकिन the firm is producing over here, which is slightly on the higher side. तो हम कहते हैं देखें जी ये तो X inefficiency है, because the monopoly is not producing at the lowest level of average cost. And this might happen. Why? The important part of this explanation is it is where production takes place at the cost above the average and marginal cost due to a lack of strong competition in an industry and to organizational slack inside the firm, right? तो ये दो वजूहात दी हुई हैं कि क्योंकि एनवायरनमेंट में मोनोपोली है और कोई कोई कंपेटिटिव एज है ही नहीं, कोई कंटेस्टेबिलिटी है ही नहीं, तो वो जो है कंप्लेसेंट हो जाते हैं। तो ये एक्स इनएफिशिएंसी का पॉइंट है कि यू आर नॉट अचीविंग द लोएस्ट एवरेज कॉस्ट। इसको जरा थोड़ा सा गौर से देख लेना क्लोजली, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हमने तीन टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात कर चुके हैं हम, ठीक है। इसके ऊपर फाइनल प्ले के अंदर शायद एक आपके पास में ऐसे किया हुआ हो। डिस्क्रिमिनेशन में तीन टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, यू जस्ट हैव टू डू जो हमारे नोट्स के अंदर लिखा हुआ है ना, यू जस्ट कॉपी पेस्ट दैट एंड यू विल बी फाइन, ठीक है। ऑलिगोपली के अंदर बच्चे गेम थ्योरी बहुत डालते हैं अपने आंसर स्ट्रक्चर्स के अंदर, right? So you can, not necessarily unless they ask for it. Oh, the principal agent problem. I think अभी recent के अंदर principal agent problem के ऊपर भी question आया था, कौन सा वाला था? Let me bring it up for you. Yeah, it was in October 41 24, जिसमें firm के objectives और principal agent के ऊपर आ गया था question। तो भाई जहां तक प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम की बात है, दैट इज ऑफ कोर्स यू कैन टॉक अबाउट दैट इन टर्म्स ऑफ द एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट के अंदर कि जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने जा रहे होते हैं, तो टर्न्स आउट एंड व्हाट वी सीन इज कि फर्म्स अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के अंदर जो आपके दूसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं वो अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं, विच ब्रिंग्स इन द होल प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम।
and then you can explain the whole principal agent problem because of the divorce between the owner and uh, the agent, the worker, because they both are trying to achieve different objectives. They might not care for the other person's objective. And so, what they should do is they should align the objectives together in order to get the best possible result. तो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। गेम थ्योरी की जहां तक बात है, गेम थ्योरी बेसिकली is derived from the idea of the prisoner's dilemma, where there is an assumption of a zero sum game. ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जब आप एग्रीकल्चर के जमाने में चले जाते हैं और आप कहते हैं कि मार्केट में जब दो प्लेयर हैं और दो प्लेयर आपस में compete या कलूट करने जाते हैं, तो देर इज एन आइडिया ऑफ अ जीरो सम गेम विच इज के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक विनर निकलता है और एक लूजर निकलता है। जब हम इंडिया पाकिस्तान का द होल वॉर गेम को भी करें तो वी आर लुकिंग एट इट, जिस तरह से पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं और इंडियंस अपसेट हैं, तो उससे हमें ये जीरो सम गेम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि आप कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में एक विनर होता है, एक लूजर होता है। बट कैन वी लुक एट दिस इन टर्म्स ऑफ कि जरूरी नहीं है हर चीज जीरो सम गेम हो सकता है कि द विनर दे कैन बी बोथ, बोथ पार्टीज कैन बी द विनर्स, ओके, और बोथ पार्टीज कैन बी द लूजर। तो ये अब जीरो सम गेम के एंटी चली जाती है बात। जैसे हम एग्रीकल्चर के अंदर कहते हैं कि अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो हमें रिसोर्सेज कहीं और से निकालने पड़ेंगे, परेटो एफिशिएंसी। तो जीरो सम गेम हो गया, इन ऑर्डर टू बेनिफिट समबडी, समबडी हेल्थ हैज टू बी वर्स ऑफ। लेकिन जब हम पीपीसी को आउटवर्ड शिफ्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दैट, तो वो जीरो सम गेम को किल कर देता है और वो कहता है कि भाई आप वो दोनों बेनिफिट कर सकते हैं जब आप प्रोडक्टिविटी अच्छी कर दें तो। ओके जी। लेकिन हम यहाँ पे जीरो सम गेम को लेके चलेंगे, वन हैज टू बी द विनर, वन हैज टू बी द लूजर। मोस्टली हम यही देखते हैं केसेस के अंदर। तो इस सिचुएशन को समझाने के लिए ऑब्वियसली वी हैड द होल प्रिजनर्स डिलेमा, जिसके अंदर आपने जो है दो एक क्राइम होता है और आप दो सस्पेक्ट को उठा के दो कमरों में बंद कर देते हैं। ऑब्वियसली आई यूज द वर्ड सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब कि यार इनकी एक पास्ट हिस्ट्री है, तो जब भी आपने इनको उठाया है, कोई ऐसे नहीं हो सकता कि आपने जो है कोई रैंडम चलते हुए बंदे को, साफ सुथरे बंदे को, नॉन क्रिमिनल बंदे को उठा के और उस पे प्रिजनर डिलेमा लगाने की कोशिश करें। दैट्स नॉट हाउ इट विल वर्क। इट हैज टू बी टू सस्पेक्ट। दोनों सब सस्पेक्ट को बोला है कि भाई आपने डील पहले कबूल कर ली तो आपके लिए हम लाइट सेंटेंस कर लेंगे, दूसरे को लंबा अंदर करेंगे। बट यही डील हमने दूसरे को भी ऑफर की है, एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन अगर दोनों नहीं मानोगे तो दोनों को हम कहीं ना कहीं किसी और चार्ज के लिए अंदर कर ही देंगे। हमारे तुम्हारे ऊपर केस तो है हमारे पास, राइट? एवरी सिंगल क्रिमिनल प्लॉट है। तो उसमें जब ट्रस्ट को आप टेस्ट करते हैं तो असल में गेम थ्योरी इज अबाउट ट्रस्ट एंड टेस्टिंग दैट ट्रस्ट। तो अगर आप ट्रस्ट कर देते हैं तो they both will go in for a lighter sentence and they can plead their case or whatever. But if there is no trust, one will put the other one in the fault. तो हम कहेंगे कि दोनों ही अग्री कर जाएंगे और दोनों ही लंबा टाइम अंदर चले जाएंगे। अब इसको अगर हम फर्म की केस में लगा लें तो फर्म के केस के अंदर हमने कुछ इस तरीके से किया। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। इज द फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग एट दिस, बट चलो। दो, आई गेस एयरलाइंस हैं, दो एयरलाइंस हैं, एक बैट फ्लाइट है और एक स्विंग एयरलाइंस है। अगर दोनों अपने फेयर्स को हाई साइड के ऊपर रखते हैं, गेम थ्योरी करोगे तो ये मैट्रिसेस बनाना जरूरी है। 100 और 100 पे अगर प्राइसेस रखोगे तो दोनों 30 मिलियन अपीस कमाएंगे, बहुत अच्छी बात है।
दोनों ने अगर पैसे कम कर दिए तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाएगा, दोनों कम पैसे बनाएंगे, 20-20 मिलियन ईच। ठीक है। अगर स्विंग एयरलाइन ने अपनी प्राइसेस को ऊपर रखा और बैट फ्लाइट ने होशियारी मार के डिस्काउंट दे दिया, तो बैट फ्लाइट जीत जाएगा, अगला सफर करेगा। तो ये चीट का कॉन्सेप्ट है। बोथ पार्टी knows that if I cheat I make more money, they know that if I cheat they make। ओलिगोपली की पहली लाइन हम एक्सप्लेन क्या करते हैं, that oligopolies में the firms are interdependent, one firm's decision affects the other firm's decision। तो ये सिर्फ अपने आप को नहीं देख रहा, ये उसको भी देख रहा है कि अगर उसने चीट किया तो क्या होगा। मैंने नहीं किया, उसने कर लिया, तो आई एम द लूजर हियर। मैंने करा, उसने नहीं किया, तो आई एम द विनर। इफ मैंने भी कम कर दिया, उसने भी कम कर दिया, तो नो वन द वाइजर। ठीक है, क्योंकि यू लेफ्ट द बेटर डील आउट, आई डोंट ट्रस्ट देम, लेट्स रिड्यूस, लेट्स मेक द मनी। तो नैश इक्विलिब्रियम कहता है कि क्योंकि देयर इज अ ट्रस्ट प्रॉब्लम, दोनों will end up reducing their fares, not trusting the other party, and they both will end up taking lesser money while there is a more dominant strategy available. But this is what they're going to do। ठीक है। तो ये गेम थ्योरी है, that how we cannot help ourselves and we will end up with uh, a poorer strategy। ठीक है जी। तो ये काफी सारी इसमें बात हुई है, कोल्यूशन, कार्टेलिंग मॉडल, इन सारी चीजों की बात हुई भी है, इसमें काफी सारी डिटेल्स के अंदर है। बाय द वे, टेरी कुक हैज डन फैंटास्टिक जॉब इन एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल थिंग। अ बिट टू मच बट रीजनेबल, कंटेस्टेबल भी अच्छा ही है, रीजनेबल है। बैम्फर्ड में एग्जांपल्स ज्यादा हैं इसकी, लेकिन इसके अंदर कंटेस्टेबल मार्केट। तो द कंटेस्टेबल मार्केट्स का सिंपल आइडिया क्या है, आपने क्या समझना है कंटेस्टेबिलिटी के बारे में। आप कहते हैं पूरे मार्केट स्ट्रक्चर के चैप्टर के अंदर विद क्लैरिटी आपने कहा कि जी देखें, परफेक्ट मार्केट्स, इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट के केस के अंदर क्या होता है कि परफेक्ट मार्केट के अंदर, मार्केट्स के अंदर कंपटीशन आराम से घुस के आ सकता है, कोई चैलेंज ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं। ठीक है जी। लेकिन बाकी स्ट्रक्चर्स में कोई ना कोई आपके पास बैरियर्स हैं। इवन लाइक अगर मैं कहूँ कॉफी शॉप, क्या पाकिस्तान में कॉफी शॉप्स को मैं कह सकता हूँ कि ये परफेक्ट कंपटीशन में है? नहीं, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है। बहुत सारी फर्म्स हैं, कुछ ना कुछ छोटे मोटे एज पे काम कर रही हैं, सबके पास इंसिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है, बट दे ऑल हैव सम डिफरेंशिएशन, राइट। अब इन मार्केट्स को कंटेस्टेबल कैसे करें भाई? देखें, इस मार्केट में मैं कॉफी शॉप को किस तरह से एक ऐसी मार्केट बना दूं कि कोई भी बंदा इसमें घुस सके और एग्जिट कर सके, कोई ये कंटेस्टेबिलिटी का कोई एलिमेंट आ जाए, कोई ऐसा सीन हो जाए कि एनी वन कैन एंटर दिस मार्केट कॉस्ट फ्री, और ये मार्केट हाईली कंटेस्टेबल बन जाए। यू डोंट हैव टू बी लाइक अ स्पेशलाइज्ड कॉफी शॉप इन ऑर्डर टू गेट इनटू दिस मार्केट। ठीक है जी। तो obviously for everyone they will have to incur some sort of cost or something। तो आप सोचेंगे कोई ऐसा बिजनेस, राइट, कोई ऐसा बिजनेस जो कोई भी चीज सेल करता हो, ठीक है, और उनके लिए जब कॉफी का सीजन आ जाता है या कोई कॉफी की गेम आ जाती है, तो वो मार्केट के अंदर कॉफी भी बेच देते हैं विदाउट एनी इनकरिंग एनी एडिशनल कॉस्ट, एंड दे कैन एग्जिट द मार्केट ऑल्सो विदाउट इनकरिंग एनी एडिशनल कॉस्ट। इस तरह की कोई कंटेस्टेबिलिटी आ जाए, जब मैं कॉफी का सोचता हूँ, तो व्हाट आई सी इज दोज पीपल हु आर डूइंग कॉफी सीजनली, like one of those restaurants, like hot and spicy or something like that, कि जब कॉफी सीजन आता है तो वो अपनी एस्प्रेसो मशीन बाहर ले आते हैं एंड दे मेक सम सेल्स ओवर देयर, एंड देन जब कॉफी सीजन खत्म हो जाता है तो दे टेक इट आउट एंड यू नो ये कंटेस्टेबिलिटी हो सकती है। लेकिन
द ट्रू आइडिया इज कि एंट्री एंड एग्जिट कॉस्ट फ्री होना चाहिए. दैट्स द मेजर थिंग दैट आई नीड टू सी व्हेन यू राइटिंग अबाउट द ट्रस्ट फैक्टर. ठीक है. ओके, सो एक छोटा सा पीछे का क्वेश्चन है. लेट मी आंसर दैट आल्सो विद द गेम थ्योरी का कॉन्सेप्ट. That can we link the concept of zero sum game with Pareto efficiency? Since in that two, one is technically the loser. Obviously, I think in my discussion I did mention that zero sum game or Pareto efficiency sort of like are linked together. And अगर trust है between firms and both keep same fare, is that technically not an informal agreement? It is an informal agreement. It's sort of like a tacit theme. Yeah. तो गेम थ्योरी के अंदर आपको हम दोनों चीजें दिखा रहे हैं, दैट इफ दे कलूड व्हाट हैपेंस, इफ दे compete व्हाट हैपेंस. लेकिन बिकॉज ऑफ द टेस्टिंग ऑफ द ट्रस्ट, Nash equilibrium says that they will end up cheating. राइट. जैसे हमने ये केस कार्टेल के केस में भी बनाया कि वो तो फॉर्मल है ना, लेकिन फॉर्मल के अंदर भी देर इज एन इंसेंटिव टू मेक मोर प्रॉफिट फॉर अ सिंगल फर्म टू चीट एंड सेल मोर इन द मार्केट, एंड दे विल एंड अप. तो कार्टेल के अंदर भी देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द फर्म चीटिंग. राइट. तो ये हम तो अपने डायग्राम में एक्सप्लेन भी करते हैं. इफ यू डू गो एंड सी द नोट्स, उसमें ये सारी बात हो चुकी है. तो डू टेक अ लुक एट दैट ऑल्सो. अच्छा जी. आ प्राइस और नॉन प्राइस के अंदर जो टेरिको के अंदर ये डिस्कशन हुआ है ना, इट्स अ वेरी नाइस डिस्कशन एक्चुअली. कि जब हम बात करते हैं ना कि फर्म क्या हमेशा प्राइस के ऊपर ही compete करती है, या प्राइस ही सिर्फ है जो competing फैक्टर है ओवर हियर. तो वी से भाई प्राइस इज नॉट ऑलवेज. लाइक फॉर एग्जांपल, ओलिगोपली में अगर कार्टेल हो जाता है तो प्राइस इज नॉट द डिटर्मिनिंग फैक्टर. प्राइस लीडरशिप मॉडल के अंदर भी हमें पता है कि प्राइस इज नॉट द फाइटिंग फैक्टर. गेम थ्योरी के अंदर या किंग डिमांड कर्व के अंदर भी वो जो ब्रेक आता है, वो ब्रेक भी यही बताता है कि एक प्रिवेलिंग प्राइस के ऊपर जो है रेट सेट हो जाता है. तो सारे केसेस में तो हम यही कह रहे हैं कि भाई एक प्रिवेलिंग रेट सेट हो जाता है. ठीक. तो फिर आप नॉन प्राइस के ऊपर जाते हैं. तो नॉन प्राइस के अंदर भी इट्स अबाउट advertising, trying to get the higher market share, trying to put our product in the consumer's mind, giving them after sale service, free delivery, slight minor differences in the quality and designs, upgradation, loyalty scheme programs. There are so many. For example, अगर हम supermarkets की बात करें, there are so many supermarkets, right? Would you agree with that? So many supermarkets, reasonably big supermarkets. If they are not competing with price, काफी हद तक अगर तुम देखो ना, तो अगर एक के अंदर लक सस्ता होगा तो दूसरा कोई और चीज महंगी होगी. ऑनेस्टली दैट्स हाउ दे प्ले अराउंड. आपका बिल एट द एंड ऑफ द डे ना कोई बहुत मेजर फर्क नहीं आएगा, बहुत क्लोज रेट ही आएगा अगर आप कोई दो बड़े तीन बड़े सुपरमार्केट्स में चले जाए. तो वो क्या करते हैं, ये थोड़े से लॉयल्टी स्कीम्स और ये चीजें लेकर आते हैं, पॉइंट सिस्टम्स वगैरह लेकर आते हैं. वो खास लाते ही इसी वजह से हैं कि थोड़ा सा कंज्यूमर की लॉयल्टी क्रिएट कर सकें. पीपल गेट यूज टू ऑफ दैट. राइट. बाकी अभी लक्स की क्वालिटी दोनों जगह सेम ही है. अगर लक्स सस्ता है तो दूसरा कोई शैम्पू महंगा है, लेना तो मैंने दोनों ही है. एक जगह मुझे सस्ता पड़ेगा, दूसरी जगह मुझे महंगा पड़ेगा. टर्न्स आउट टू बी द सेम थिंग. Growth and survival of the firms, the discussion on small firms and large firms, their advantages and disadvantages. Please do take a look at this one also. बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन आ जाता है. इट्स नॉट इवन डिफिकल्ट, यू कैन जस्ट विंग इट ऑल्सो. इट्स जस्ट दैट योर एक्सप्लेनेशन एंड द डिस्कशन शुड बी अ नाइस वन इन दैट. ठीक है. इसमें फिर कार्टेलिंग की वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम वी टॉक्ड अबाउट इट. Different objectives we've talked about it. Price discrimination और उसके diagrams. To take a look at that. थोड़े से मसले हैं डायग्राम्स में, बस चलेगा. केस स्टडी में प्रेडेटरी प्राइसिंग और लिमिट प्राइसिंग में पूछ लिया उन्होंने. बच्चे फंस गए उस क्वेश्चन के अंदर बहुत बुरी तरीके से कि लिमिट प्राइसिंग और प्रेडेटरी प्राइसिंग में क्या फर्क होता है. फर्क होता है ना कि नहीं होता. Of course we know there's a difference between them.
Limit pricing is when you don't want the new firms to come into the market or competitors to enter the market. आप उनको पहले ही मार्केट से बाहर रखने के लिए अपनी प्राइसेस को कम करते हैं और normally aiming for very little profits, abnormal profits, or maybe even normal profits. Predatory pricing is when you're trying to kill the other competitor in the market by lowering the price. That's how you go about that. अच्छा, this is where I said कि थोड़ा सा और गौर कर लेना पॉलिसीज ना, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, मार्केट फेलियर के ऊपर, लेबर मार्केट किसी भी साइड पे क्वेश्चन आ जाए, यू शुड बी गुड विद द पॉलिसीज ना। पॉलिसीज के साथ किस तरीके से यू वांट टू वर्क विद। माइक्रो के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर बहुत ही लिमिटेड पॉलिसी है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, एएस में तुमको पढ़ाया भी है मैंने, एड वैलोरम एंड दी स्पेसिफिक टैक्स। ओके, एक तरफ आपके पास टैक्सेशन डीमेरिट को रोकने के लिए और मेरिट के लिए सब्सिडीज आ जाती है। पोल्यूशन रोकने के लिए प्रोडक्शन कोटाज आ सकते हैं, या फिर डीमेरिट को रोकने के लिए प्रोडक्शन कोटाज आ सकते हैं। प्रोहिबिशन एंड लाइसेंसेस आ जा सकती हैं, रेगुलेशंस आ सकती हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। एक्सटर्नैलिटीज में इसके ऊपर काफी डिस्कशन हो चुका है। समथिंग कॉल्ड द पोल्यूशन परमिट, द ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट, राइट, जो आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। या गवर्नमेंट खुद घुस के मार्केट के अंदर प्रोविजनिंग कर सकती है सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसको आप देख सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन, कुछ आया था प्राइवेटाइजेशन पे, आई आई थिंक वी सॉल्व द क्वेश्चन ऑन प्राइवेटाइजेशन, अक्टूबर 42 के अंदर आया था। प्राइवेटाइजेशन एंड एई, आई थिंक वी सॉल्व दैट क्वेश्चन। डू टेक अ लुक एट इट इफ यू नीड टू। प्राइवेटाइजेशन पे तो दोबारा कम चांसेस हैं कि प्राइवेटाइजेशन पे ही आ जाए, बट नेशनलाइजेशन पे तो आ सकता है ना, कि नेशनलाइजेशन के बारे में बता दें चलें, उसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेज दे दें, तो दैट कैन बी डिस्कस्ड। ओके, नेशनलाइजेशन, इन्होंने ज्यादा तो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात की भी है। कैसे इंफॉर्मेशन फेलियर ठीक कर सकते हैं, नज थ्योरी को यूज करते हुए इन्होंने एक बात की है। अगेन वेरी सिंपल सिंपल है, लेकिन गवर्नमेंट की आप मेरी नजर में तीन, कोई भी तीन गवर्नमेंट की करेक्टिंग पॉलिसी कर लें, टैक्सेस, सब्सिडीज, इंफॉर्मेशन फेलियर का हल, आई थिंक ये तीन बहुत अच्छी हैं। ये मेरिट डीमेरिट का बहुत अच्छे से सवाल के जवाब और हल कर देती हैं। डायरेक्ट प्रोविजनिंग को भी इसमें ले आओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, डायरेक्ट प्रोविजनिंग एंड प्रोवाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तुम्हारा डायरेक्ट प्रोविजनिंग पब्लिक गुड का मसला हल कर देगा, इंफॉर्मेशन फेलियर का मसला हल हो जाएगा मेरिट डीमेरिट के लिए। तो ये मेरा ख्याल है ये वही एएस की मैं बात कर रहा हूँ, कोई नई बात नहीं कर रहा, ये वही एएस वाला ही डिस्कशन है। दैट नीड्स टू बी डन इन अ नाइस वे। इक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज स्टिल पार्ट ऑफ योर कोर्स। इक्विटी और इक्वालिटी में फर्क आना चाहिए। इक्विटी इज एवरीवन ट्रीटेड इक्वली, equality is making sure that everyone gets the same opportunity. Fairness की बात करें तो equity is more fair, equality is not fair, it's not reliant on fair. Equality is let's, economy is down, let's give everyone $1,000. Equity is गरीब को 2,000 3,000 दो और अमीर से लो पैसे, तो that can be equity। ठीक, तो ये हमारी कुछ बात हुई भी है। छोटा मोटा पॉवर्टी ट्रैप या नेगेटिव इनकम टैक्स के ऊपर कोई सवाल अगर आ जाए केस स्टडी के अंदर या कुछ, तो आ भी सकता है। पॉवर्टी ट्रैप क्या होता है कि जब आप लोगों को फ्री में पैसे देते हो, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जिसको आप ट्रांसफर पेमेंट्स कहते हो, तो लोगों के लिए डिसइंसेंटिव क्रिएट हो जाता है टू वर्क। और फिर वो जब डिसइंसेंटिव क्रिएट हो जाता है तो ऑब्वियसली वो फिर लोगों को पॉवर्टी में फंसा देता है। आपका जो लोएस्ट इनकम तबका है, वो जब काम करता है तो वो इतने ही पैसे कमाता है जितना आपका मिनिमम वेज हो सकता है। अब गवर्नमेंट अगर ट्रांसफर पेमेंट दे रही है तो वो बंदा बोलेगा यार क्या जाके मेहनत करनी, क्योंकि मेरे पास तो स्किल है ही नहीं, मैं कुछ और बेहतर काम तो कर ही नहीं सकता, तो घर ही बैठता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ही मिल जाएंगे। तो गुजारा है, थोड़ा सा कम भी होगा तो कोई बात नहीं,
जाने आने का खर्चा, लंच वंच का खर्चा, ये सब निकल फ्री हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। ठीक। नेगेटिव इनकम टैक्स क्या होता है? Over here they define it as a system which brings together the payment of tax and the receipt of the benefit. होता क्या है, अभी हमने बात की कि अगर आप लोगों को मेन टैक्स बेनिफिट देंगे तो उससे क्या होगा कि लोग, डिसइंसेंटिव क्रिएट होगा और वो काम नहीं करना चाहेंगे। तो नेगेटिव इनकम टैक्स क्या कहता है कि अगर आपकी इनकम बहुत कम है ना, तो हम आपको टैक्स ब्रेक देंगे कि अगर आप काम करते हैं और आप थोड़े से पैसे ज्यादा कमा भी लेते हैं तो हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे। इनफैक्ट हम आपको एडवांटेज देंगे। सो यू वोंट हैव टू पे दैट टैक्स टू दैट लेवल। जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट होता है, दैट व्हेन योर इनकम्स आर लो यू आर नॉट टैक्स्ड। इसमें आई थिंक, आई डोंट नो इफ दे डन अ गुड जॉब इन एक्सप्लेनिंग। Let me see. The idea of negative income tax involves the combination of the payment of income tax and the receipt of the benefit in one system. कि जो आपको बेनिफिट मिल रहा है और आप जो टैक्स पे कर रहे हैं उसको आप सॉर्ट ऑफ इंक्लूड कर लें। The idea is that the government would determine a particular income level, and all people earning above that would pay income tax, while all people earning below that level would not pay the income tax but would receive benefits. इसका जो डायग्राम बनता है ना, वो मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ। आई डोंट नो इफ दे मेड दैट डायग्राम ओवर हियर और नॉट। दे हैवंट। इसका डायग्राम जो हम बनाते आए ना एएस के अंदर भी और उसमें, sort of like works like this. एक्स और वाई एक्सिस है। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम के बाद इस तरह से कुछ होता है। वी हैव इनकम ओवर हियर, सो इफ यू आर अर्निंग दिस मच मनी तो आपके ऊपर जो है नेगेटिव इनकम टैक्स लगेगा। दैट, सॉरी लेट मी जस्ट डू द मार्किंग। अगर आप ये इनकम कमाते हैं Y0 तो आपके ऊपर नेगेटिव इनकम टैक्स लग रहा है। ठीक है। व्हाट दैट शोज इज कि आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे ऑन टॉप ऑफ, यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस, प्लस यू गोना गेट एन एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी। वंस यू रीच दिस लेवल Y1 के ऊपर तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वंस यू गो अबव दिस तो फिर आप पे एक मार्जिनल प्रोपोर्शनल टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। तो द हायर इनकम यू मेक, आप पे एक छोटा अमाउंट ऑफ टैक्स लगेगा। तो इस तरह से असल इस मसले का हल है कि ये लोग तो फिर काम ही नहीं करते। अगर उन पे भी टैक्स लग जाता या उनको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता तो वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लेने पे निकल जाते। इधर क्या होता है कि आपको एक छोटा मोटा एडिशनल बेनिफिट रिसीव हो जाता है ऑन टॉप ऑफ योर पे। इट इनकरेजेस पीपल टू गो एंड वर्क। तो ये आपके उसके अंदर है। लेबर लेबर का चैप्टर बहुत बड़ा है। प्लीज गो ऑन टू दोज लेक्चर। द लेबर वाला लेक्चर, उसको बहुत क्लोजली देखो। आ, देख लो जी, अगर लेबर के ऊपर नहीं भी आया है तो लेबर रिलेटेड कुछ ना कुछ आता रहता है। इधर भी देखें, अक्टूबर में भी लेबर के ऊपर आ गया है, इसमें भी लेबर के ऊपर आ गया है। अक्टूबर 42 में कुछ खास लेबर मुझे नज़र नहीं आ रहा। जून में कुछ खास नज़र नहीं आया। उससे पहले अक्टूबर 2022 के अंदर आया था। उससे पहले हमेशा ही आता था ऑन एंड ऑफ। तो आई वुड स्टिल सस्पेक्ट कि लेबर ऐसे के अंदर बन सकता है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू प्रिपेयर फॉर इट। उसको छोड़ना मत, जो भी करें आप। लॉरेंस कर्व इन इनइक्वालिटी इन माइक्रो और मैक्रो दोनों के अंदर है भाई। लॉरेंस कर्व और इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी तो आपने माइक्रो में एएफ के अंदर डिस्कस किया है। इट्स अ माइक्रो थिंग विच कैन ऑल्सो बी टेकन इनटू मैक्रो। आई थिंक मेरा ख्याल है तुम आगे मैक्रो के अंदर इस पर डिस्कशन होगा लॉरेंस कर्व के ऊपर। तो इट्स पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी माइक्रो और मैक्रो दोनों में डिस्कस होती है। इट्स देयर इज नो लिमिटेशन टू वन। प्लीज लेबर को जरूर देखो। लेबर के अंदर क्वेश्चन जो है वो
मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे बन सकता है, एक वेज डिफरेंशियल पे बन सकता है, ठीक है। एक ये जो आ चुका है मोनोपोली, और इसके ऊपर बन सकता है। परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट्स और इम्परफेक्ट के डिफरेंसेस में बन सकता है। दे कैन मेक अ कंपैरिजन कि एक स्किल्ड वर्कफोर्स और एक अनस्किल्ड मार्केट दोनों में किस तरीके से एमआरपी बनाने में और एक्सप्लेनेशन के अंदर बन सकता है, क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। एमआरपी को एक्सप्लेन करते हुए डिमांड फॉर लेबर और किस तरह से परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वेजेस डिटरमिन होती हैं। तो फिर अच्छा, एमआरपी थ्योरी तुमने कब डिस्कस करनी है? अगर क्वेश्चन आता है कि परफेक्ट कंपटीशन में किस तरह से वेज डिटरमिन होती है, परफेक्ट कंपटीशन, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में पूछा है, तो फिर आपने एमआरपी को बड़ा लेंदी तरीके से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपने एक फर्म का डिमांड कर्व कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, उसके पीछे क्या थ्योरी है, यू हैव टू गो ओवर द होल थिंग। एवरीथिंग नीड्स टू बी डिस्कस्ड, नॉट द इलास्टिसिटी, बट किस तरीके से सप्लाई फॉर अ लेबर, और वो सारी नॉट इलास्टिसिटी और सप्लाई, और परफेक्ट मार्केट्स के अंदर किस तरीके से वेज डिटरमिन होता है दिस, एंड किस तरह से अगर चेंजेस आ जाती हैं तो वेजेस में किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं। दैट होल थिंग नीड्स टू बी डिस्कस्ड। लेकिन अगर क्वेश्चन कंपैरिजन पे आ जाता है, कंपैरिजन मतलब के प्राइस लीडरशिप, सॉरी क्या कह रहा हूँ, अगर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ के परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोलिस्टिक का कंपैरिजन हो जाता है, या इवन अ क्वेश्चन लाइक जैसे अभी रिसेंट में आया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई वोंट बी सरप्राइज अगर रिपीट हो जाए, मोनोप्सनी और ट्रेड यूनियन के केस का, कि मोनोप्सनी क्या हमेशा लोअर वेजेस पे करती है इन टर्म्स ऑफ अगर यूनियनाइज इंडस्ट्री हो, कि या फिर यूनियन के आने की वजह से क्या हमेशा फर्म्स विल राइज अबव द मोनोप्सनी या परफेक्ट कंपटीशन। तो नाउ यू, अगर कंपैरिजन में कुछ मेंशन नहीं हुआ तो परफेक्ट कंपटीशन से कंपैरिजन इज ऑलवेज मेड। अंडरस्टूड? ओके जी, तो ये आपका लेबर मार्केट का क्वेश्चन रिलेटेड है, प्लीज मेक श्योर कि इसको बहुत क्लोजली पढ़ो। क्यों, ट्रेड यूनियन का क्या काम होता है, क्या प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करता है, उसका क्या डायग्राम बनता है, क्या ये प्रॉब्लम्स हमेशा होती हैं अलोंग दोज लाइन, ठीक है। प्राइस लीडरशिप का डायग्राम करा दूं? ओके, जहां तक प्राइस लीडरशिप की बात है, देखें डिफरेंट बुक्स हैव डिफरेंट प्राइस लीडरशिप, बहुत ही सिग्निफिकेंटली डिफरेंसेस हैं, एक्सट्रीम डिफरेंसेस हैं। अब हमने कौन से टाइप के ऊपर जाना है इज अ क्वेश्चन। मैं तुमको आई गेस दो तीन दिखा देता हूँ, and then you can decide whichever one you like, you can use that, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन विद मोनोपोलिस्टिक का है, वो भी बड़ा अच्छा है वैसे तो। हाँ, इसमें तो नहीं है। नहीं, इसमें भी नहीं है। ऑलराइट, लेट मी मेक वन फॉर यू देन। इस तरह से बना लेना प्लीज, एंड इट इज गोना बी एक्सेप्टेबल, डोंट वरी। आसान से बनाएंगे। आई नो, मैंने अभी टेरी कोक में तो देखा था, पता ये राइट। तो आपने क्या करना है, इंडस्ट्री का डिमांड कर्व, ठीक है।
लीडर का डिमांड कर्व। इफ यू नोटिस, जो मैंने मार्केट के डिमांड वर्सेस लीडर का जो डिमांड कर्व दिखाया है, मैं ये शो कर रहा हूँ। एट अ लोअर प्राइस, एट अ लोअर प्राइस, the leader will probably take away the market. They will steal the market. अगर आप पूरे पाकिस्तान की डिटर्जेंट की बात करें, तो एरियल इज वन ऑफ द लीडर्स। इट्स अ क्लियर ब्रांड। यूनिलीवर का ब्रांड है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। आई थिंक पीएनजी का है, वन ऑफ दिस बड़ी कंपनी का है, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट। तो अगर प्राइसेस बहुत ही लो कर दें तो दे विल स्टील द मार्केट कंप्लीटली। ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइस बढ़ा दें तो मार्केट के अंदर डिफरेंट फिर लोगों की भी स्पेस आ जाती है। तो देयरफॉर दिस इज हाउ द मार्केट लीडर का डिमांड कर्व है, एंड दिस इज हाउ द मार्केट का डिमांड कर्व है। ठीक है। आप कहते हैं प्राइस लीडर के अंदर यू अलाउ द लीडर टू डिसाइड वट एवर दे वॉन्ट। ठीक है। तो उस बेसिस के ऊपर मैं कहूंगा ये लीडर का एमआर है, और ये लीडर का मार्जिनल कॉस्ट है। लीडर अपनी मर्जी से एम आर इक्वल्स टू एम सी की बेसिस पे खुद एक क्वांटिटी डिसाइड करता है और एक प्राइस स्टैब्लिश करता है। लीडर इज गोइंग फॉर अ परफेक्टली competitive सिचुएशन, एंड दे आर परफेक्टली हैप्पी विद व्हाट दे आर डूइंग। ओके जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं, दे आर हैप्पी विद देयर कंडीशन। लेट मी कंप्लीट द मार्किंग, like lag over here. Okay. Okay, so this is what I have. अब इसमें लीडर ने तो डिसाइड कर लिया, अब आप बाकियों को ले आए, फॉलोअर को लेकर आ जाएं, और फॉलोअर से बोलें कि आपने जो है यही प्राइस चूज करनी है जो लीडर की प्राइस है, और मार्केट के अंदर जो एडिशनल डिमांड है, जो टोटल डिमांड है, उसमें से जो लेफ्ट ओवर है वो फॉलोअर्स कैन बेसिकली फुलफिल। तो ये आपका डायग्राम है। इट्स रीजनेबली गुड डायग्राम, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, एंड यू कैन स्टिक विद दिस डायग्राम।